Till now I discussed the different types of programs. Okay, rest of the programs you can try to write. If you find any difficulty in that, you can tell me. Okay, today we will see that if you are writing a program, how can you define that this program will take how much time to execute it? ओके किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा किसी प्रोसेसर के साथ, हाउ कैन यू फाइंड आउट, हाउ कैन यू कैलकुलेट इट? इफ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट दिस, इट मीन्स दैट you are not able to design any processor. Since when you are designing the processor, you are fixing the frequency of processor. Okay, for fixing the frequencies, you have to consider it in one clock cycles, how many instructions will execute at a time. Okay, so that's why if you are increasing the frequencies, it means the speed will be fast. Okay, how? When you are increasing the frequency, the time will be reduced. It means that in lesser time you can execute the more number of instructions. Okay, so now we will discuss today how can you find out the execution time of the programs. Now you can see I have given a simple programs, only 3 lines programs are there. In this program he is asking find execution time if frequency of processor is 2 megahertz. Okay, so how can you proceed this type of question? So for that purpose, first you have to find out how many T states will require to execute these programs. Then you can multiply by time, you can get the result. Okay, so before that you have to know which instructions will take how many T states. Okay, for that purpose you have to remember the machine cycles. With the help of machine cycles, you can able to find the number of T states. Okay, so now the first thing is that I am talking about the first instructions, that is called MVI C, FFH. Okay, so first you have to understand the programs. So MPI C FFH, it means that C equal to FFH, means this FF value will be copied into the C registers. Now the next is decrement C. You are going to decrement C, means you have to subtract C minus 1. Whatever the result will be there, the result will be stored in the C itself. Okay, then after I am using J and Z, the condition is J and Z means jump if not 0. Okay, jump if not 0, it means that when the 0 flag, or you can see directly you can tell if C equal to, you have to check C equal to 0 or non-zero. There are two conditions. If you are decrementing the C, the first time you are decrementing, you are getting the FE value. Second times, then you can get FD value. Okay, in this way you are decrementing. Sometimes you will get that C equal to 0. Okay, so after decrement C, when you are executing J and Z instructions, this J and Z will check the value of C. So when we check the value of C, it is 0 or it is non-zero. I have used the conditions jump if not 0. So if jump is not, if C equal to not 0, it means that you have to go to the loop. Okay, it means you have to come here. When C not equal to 0. The second condition is when C equal to 0, what will happen? When C equal to 0, it means that this J and Z condition will not satisfy. If it will not satisfy, the program counter will move next instructions. Okay, so you will understand what is the
how the program will be executing. Okay. Now the question is, first is you have to find out, the next step is you have to find out the number of t states. Okay. So for that purpose, I am going to erase these things. Okay. Now you have to find out MPI C, FFH. How many T states will required to execute these instructions? Can anyone tell? कितना T states लगेगा इसको required? How much? 10. 10. How? तो पहले ऑपकोड फेच करेगा, फिर 77 को Okay. पहले ऑपकोड फेच करेगा 4 T states. Next. फिर एफएफ को रीड करेगा, FF को रीड करेगा 3 T states. सी में राइट करेगा. देखो एक चीज है, ठीक है, दिस विल रिक्वायर्ड ओनली 4T प्लस 3T स्टेट्स. बाद में 3T राइट करने का जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये C इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेसर. अगर मान लो कि FF जो है C में कॉपी हो गया, जैसे ही रीड करेगा ये डायरेक्टली C में ही जाएगा, ठीक है. लेकिन इन प्लेस ऑफ C अगर मान लो कि मेमोरी है, तब राइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है. तो ये जो प्रोसेसर के अंदर की जो चीजें हैं ना, वो प्रोसेसर के अंदर की चीजों है, उसमें राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो सिंपल सी एक एग्जांपल मान लो कि अगर मान लो कि कोई भी रजिस्टर्स है, तो कोई भी रजिस्टर्स में कोई डेटा राइट करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही प्रोसेसर रीड करेगा, इसका मतलब वो C में ही जाएगा. बात समझ गए? अब देखो होता क्या है, व्हेन मेमोरी इज देयर, तो मेमोरी में डिफरेंट होगा. मेमोरी यहां पे रहता तब क्या होता 10 T स्टेट्स, क्योंकि मेमोरी में तुम्हें लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो 3 T स्टेट्स राइट के लिए भी लगेगा. अंडरस्टैंड द कंसेप्ट आदित्य? कहां 7 होगा, कहां 10 होगा, ठीक है. ओके. सो नाउ आई हैव टेकन 10 T states. So I will remove these things and I will write directly, sorry, 7 T states. 7 T states to execute the MBI C file. Now next to the part of the DCRC, decrement C. Decrement C will take how many T states to execute it? 4 T states. Fine. 4 T states. Okay. Now comes to the JNZ loop. JNZ loop will take how many T states? You can think and tell. Let us consider in place of loop, I am defining the address. मान लो कि यहाँ की इसकी एड्रेस लोकेशन है 2001, ठीक है. तो हम इसको लूप को हटा के हम क्या कर देंगे 2001. तो क्या हो गया इंस्ट्रक्शंस JNZ 2001, ठीक है. Yes. So now you can tell how many T states is required to solve to execute this JNZ 2001. Seventy states. Okay, one is 70 states. Anyone? See that I will tell you, whenever JNZ instruction is coming, means jump with conditions. Okay, if you are getting this type of instructions with conditions, it means as there are two positions. First is the condition will satisfy, and second is condition will not satisfy. If conditions will satisfy, okay, then this address is read by the processor. Otherwise, this address will read. Okay. So when it is the condition is not satisfied, it means that the program counter value will increase simply. Means it will take
only one read cycles, that is 3 t states. So 7 t states is valid for when condition is not satisfied. Okay, now when the condition is satisfied, it will take 10 t states. If you forgot, you can just remember that when the loop is executing, it means that you can require 10 t states. If loop is not executed, it means that it is required only 7 t states. Okay, fine. You have any doubt? Have any doubt? इंस्ट्रक्शंस की एक टी स्टेट पता चल गया, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें फाइंड करना है क्या कि टोटल टी स्टेट्स कितनी रिक्वायर्ड होगी. सो हाउ कैन यू फाइंड आउट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, उतनी बार टी स्टेट्स ऐड करनी है. जैसे मान लो कि अगर MPIC एक बार इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ये 70 स्टेट्स होगा, प्लस डिक्रीमेंट C यू हैव टू चेक इट आउट कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है, लूप लगा रखा है. तो लूप लगा रखा है, इसका मतलब एक बार नहीं होगा, ये मल्टीपल टाइम्स होगा. ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से इंस्ट्रक्शंस कितनी बार एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, सो अब ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट यू फाइंड आउट कि ये जो लूप है, ये लूप कितनी बार चलेगा. हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल रन? टेल मी एनीवन, हाउ कैन यू फाइंड आउट? आई एम नॉट आस्किंग t states, I am just asking how many times this loop will run. How can you find out? Think and tell me. This loop will depend on which factor? आपका जो FFH है वो FFH है, मतलब क्या? डायरेक्टली हम FFH नहीं बोल सकते, C. ठीक है ना? yes, C रजिस्टर्स पे ये क्या करेगा? लूप डिपेंड करेगा. मतलब C की वैल्यू जब तक क्या होता है, 0 नहीं होता है, तब तक ये लूप चलता रहेगा. इट्स फाइन. Understand? Now what is the value of C? First I am considering the value of C. So C value is given in this program. C is FF. So this is in hexadecimal. Convert it into the decimal number and tell me how much. This is in hexadecimal. So I can't tell that this loop will run FFF times. Okay. So now you have to find out in the decimal number. Convert it and tell me. तो 32. 32. How it is 32? 32 कैसे होगा? अरे हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करनी है, इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? लो, कन्वर्सन भी भूल गया. ऐसे कैसे चलेगा? कितना? 277 नहीं, आवाज नहीं आ रहा क्लियर तुम्हारा. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 256 सर. 256. 255 आएगा, सर. मतलब कुछ भी. 255 कभी 256, कभी 255, कभी 254. सर आपको
सर आपको नहीं सर 255। 255। ओके फाइन। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? सबको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू रजिस्टर्स की है उसको हम क्या करेंगे, डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो ये लूप है, ठीक है, ये डिक्रीमेंट सी है, सी जो है डिक्रीमेंट सी 255 टाइम्स जो है क्या करेगा, चलेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 255 टाइम्स चलेगा, तो अब तुम्हें फाइंड करना कि लूप कितनी बार चलेगा। अगर मान लो कि जिस समय ये कंडीशंस फॉल्स होगा उस समय तो ये बाहर आ जाएगा, तो लास्ट बार जब भी सी की वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, लास्ट जो लूप होगा वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लूप है ये तुम्हारा कितना चलेगा, 254 टाइम्स चलेगा। क्योंकि जैसे ही 255 जाएगा तो ये लूप पे नहीं जाएगा, कहां चला जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया 254 क्यों होगा? क्योंकि देखो लूप के लिए हमारा टी स्टेट्स डिफरेंट है। जब JNJD लूप पे जाएगा तो मेरा टी स्टेट्स का रिक्वायरमेंट 10 है, 10T है, लेकिन जब लूप पे नहीं जा रहा है तो हमारा रिक्वायरमेंट ओनली 7T है। इसीलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि लूप कितनी बार चलेगा और विदाउट लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है फाइन। यहां तक कोई दिक्कत है? ओके, अब क्या करनी है हमें, अब जैसे तुमने फाइंड कर लिया कि 254 टाइम्स ये लूप चलेगा, तो अब ये फाइंड करो कि एक लूप को चलने में कितने टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। टेल मी द आंसर, कि एक लूप एग्जीक्यूट करने में, सिर्फ लूप की हम बात कर रहे हैं, हम आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस MBI एंड ऑल, ठीक है, हम सिर्फ लूप की बात कर रहे हैं। मतलब कहाँ बात कर रहे हैं, ये दो इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, लूप अभी यहाँ चल रहा है, अभी इसके बाद हम दो लूप वाले क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो पहले ये लूप चल रहा है, तो अब ये बताओ कि एक लूप चलने में कितने टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। 14 टी स्टेट्स, मतलब क्या, 4 टी स्टेट्स प्लस 10 टी स्टेट्स, टोटल कितना हो गया, 14 टी स्टेट्स, ठीक है। तो एक लूप एक बार अगर चलेगा लूप तो 14 टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब कितना बार चल रहा है, 254 बार चल रहा है, तो टोटल लूप का टाइम कितना हो जाएगा, 14 into 254। 254 इंटू 14 कितना आएगा आंसर, कैलकुलेट करो। कितना आएगा, 254 इंटू 14, 3556। 3556। मतलब क्या हुआ, इतना टी स्टेट्स रिक्वायर्ड होगा, क्या इतना टी स्टेट्स रिक्वायर्ड होगा तुम्हें लूप एग्जीक्यूट करने में से। मतलब लूप चलेगा, लूप को खत्म होने में 3556 टी की रिक्वायरमेंट होगी, टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इतना टाइम वो लेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो मैंने लूप की बात की, ठीक है, तभी 244 की बात की, 254 की बात की, ठीक है, लेकिन 255 भी तो एक बार एग्जीक्यूट होगा। जैसे देखो पहला इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद DCRC होगा, उसके बाद JNZ होगा, लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये वापस यहाँ चला जाएगा। तो मैंने लूप का तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ओवरऑल फर्स्ट टाइम जो एक बार एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ ये एग्जीक्यूट होगा एक बार, उसके बाद एक बार ये होगा, फिर एक बार ये होगा और उसके बाद बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या हो जाएगा, 7 टी स्टेट्स प्लस 4 टी स्टेट्स प्लस 7 टी स्टेट्स, कितना होगा टोटल, 18 टी स्टेट्स। तो ये 18 टी स्टेट्स रिक्वायर्ड होगा एक बार ये पूरा तीनों इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। लूप मैंने क्या किया है,
कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, तो अब कितना हो जाएगा, टोटल टी स्टेट्स कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दो, 18 टी स्टेट्स प्लस 3556 टी स्टेट्स, यू विल गेट 35 कितना हो गया 3574 3574 टी स्टेट्स। ठीक है, इतना टी स्टेट्स रिक्वायर्ड होगी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या फाइंड करना है, एग्जीक्यूशन टाइम। तो एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज, कैन यू एबल टू फाइंड टाइम इक्वल टू हाउ मच, 1/f, कैलकुलेट इट एंड टेल मी कितना आ रहा है टी की वैल्यू। टेल मी टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 446.75 446.5 क्या 0.75 क्या यूनिट क्या आएगा, टी टाइम है तो टाइम की तो यूनिट होगी ना कुछ सेकंड नहीं सेकंड। क्या किया है, एफ की वैल्यू 2 मेगाहर्ट्ज है तो क्या होगा 1/2 मेगाहर्ट्ज होगा ना, मेगा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइक्रो, 10⁻⁶ है ना, माइक्रो बन जाएगा। 1/2 कितना हो गया 0.5, क्या बता रहा है इतना, कितना आ गया 0.5 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, अगर 0.5 माइक्रो सेकेंड्स है, ये जो होता है हमारा, जो हम टी निकालते हैं वो 1 टी स्टेट्स का होता है। ठीक है, 1 टी स्टेट्स का होता है, क्योंकि 1 क्लॉक साइकिल्स के से बेस पे ही हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना टी स्टेट 3574 टी स्टेट्स है, इसका मतलब 3574 क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक क्लॉक साइकिल से एग्जीक्यूट करने में 0.5 सेकंड्स माइक्रो सेकंड्स लग रहा है, तो 3574 टी स्टेट्स लगने में कितना लगेगा, यू कैन मल्टीप्लाई बाई 0.5 माइक्रो सेकंड। टेल मी आंसर, हाउ मच इट इज आफ्टर मल्टीप्लाइंग 0.5 माइक्रो सेकंड्स। Do fast, then I will move to the next part. हेलो सर, Yes, tell me. तो ये जो 70 + 40 + 70 करें लास्ट में, हाँ ये वाला नहीं समझा। देखो, तो इसमें पहले वाला 70 तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा ना पूरे प्रोग्राम में। बिल्कुल, तो मैंने एक ही बार किया है ना, यहीं पे 70 लगाया है, इसके पहले तो लगाया नहीं कहीं, क्योंकि ये लूप में तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया था उसे। ठीक, यस ठीक है ना, तो 70 लग गया, ठीक। और एक 40 इसकी डिक्रीमेंट सी का, और जे एंड जेड का जो कंडीशन फॉल्स हुआ उसके लिए, तो एक बार मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, बाकी अंदर का लूप का कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, फिर गेट टोटल। ठीक, ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? So if you multiply, you can get the how much? 1.787 milliseconds. Means to execute this program, the processor will take 1.78 milliseconds. If you have any doubt, you have any confusions, please tell. सर ये फ्रीक्वेंसी वाला एक बार सी, if frequency प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ठीक है, 2 मेगाहर्ट्ज है, तो 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज है, तो फ्रीक्वेंसी से हम क्या करेंगे, टाइम निकाल सकते हैं। टी इक्वल टू क्या होता है 1/f, सो पुट 1/2 मेगाहर्ट्ज, तो मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻⁶। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, बेस में है तो बेस से जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶। इसको हमने क्या कर दिया, माइक्रो सेकंड्स में लिख दिया, 1/2 को सिंपली डिवाइड कर दिया, तो 0.5 माइक्रो सेकंड्स आ गया। ठीक है, ओके
ओके, तो वह जितना भी आया उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टी से जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। सर स्क्रीन पर सर बार बार ब्लर आ रहा है सर। इसका मतलब तुम्हारा नेट वीक है। व्हाट शुड आई डू, बताओ मैं क्या करूं? स्क्रीन दिख नहीं रहा? स्क्रीन तो दिख रहा है सर, बार बार सर ब्लर आ जा रहा है सर ये। तो इसका मतलब नेट का स्पीड तुम्हारे में कम है। सबको हो रहा है ऐसा या किसी एक को हो रहा है भाई? ठीक है सर। ओके फाइन, कोई बात नहीं अमरजीत, समझा करो, अगर समझ में आ गए तो ठीक है। वो तो नेट है बेचारा, क्या करेगा, है ना? ओके, इन द सेम मैनर यू हैव टू फाइंड आउट लो करके स्क्रीन करके मेरा स्क्रीन करा दिया वो। ओके, now same concept you have to consider, and also frequency is same, that is 2 megahertz. Okay, for this program you have to find the execution time. Find execution time. Okay, how can you find out? See, the first thing is you have to write, you have to in the side you have to write how many T states required by the single instructions. First you complete it. This instructions how many text, this instructions how many T states will require, 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 this instructions how many T states will require. First you complete this, then I will move further. देखो अंतर बस सिर्फ इसमें है कि पिछले बार में क्या हुआ था, एक लूप चल रहा था, इस बार में 2 लूप चलेगा, दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे? डन। So MBI P, 10H, it will requires how many T states? How many T states will be required to execute MBI B, 10H? Haji? कितना रिक्वायर्ड होगा? 7. Okay, 7 T states. Now same MBI C, FFH, 7 T states. Decrement C, 4 T states. JNZ loop 1, 10 T states at the time of condition satisfying, and 7 T states when condition is not satisfied. Decrement B, same 4 T states. Again JNZ loop 2, 10 T states and 7 T states. Okay, fine. So now you have to see that there are 2 loops will be formed here. One is when after decrement C, the instructions will come to the JNZ loop 1. So it will go here. So the first loop is running like this. Okay. And second loop is running from this, means up to this. Okay. So whenever it comes to the loop 2, it will go to the loop 2. When it is come to the loop 1, it will go to the loop 1. ठीक है? तो अगर मान लो कि मोर देन 1 लूप हो किसी भी प्रोग्राम में,
तो फर्स्ट यू हैव टू कंसीडर द इनर लूप, जो छोटा लूप है उसको हम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो छोटा लूप को कंसीडर करने में क्या करेंगे, छोटा लूप कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे, लूप 1 की बात करेंगे। ठीक है, एक साइड से हम लिख देते हैं। तो लूप 1 में अभी तो हमने कैलकुलेट किया था, सेम ही है, DCR-C JNZ लूप 1, वहां भी यही था। अब C की वैल्यू चेक कर लो कि C की वैल्यू क्या है। तो C की वैल्यू में मैंने FF रखा है जानबूझ के कि ताकि कैलकुलेशन अब उतना करने में आसान हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन सेम है। ठीक है ना, तीनों इंस्ट्रक्शन सेम है जो पहले मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है, तो एग्जीक्यूशन टाइम तो उतना ही होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स उतना ही होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे लूप 2 भी चलाना है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लूप 1 कंसीडर करेंगे। तो लूप 1 कितनी बार चलेगा, 254 टाइम्स। ठीक है ना, तो 254 टाइम्स लूप 1 चलेगा। अब क्या है कि क्या से सर आपका सर लूप 1 तो सर आपका 10 बार चलना चाहिए, लूप 2 ना सर 255 टाइम्स चलेगा। क्यों, JNZ लूप 1 है तो लूप 1 किस पे डिपेंड कर रहा है, C की वैल्यू पे ना, B तो इसके नीचे है। जब तक ये इसको, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता तो B आएगा ही नहीं। बात समझ रहा है, B तो तब आएगा ना जब JNZ लूप 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिक्रीमेंट B का ऑप्शन आएगा। ओके, ठीक है, तो कितना होगा, चलो हमने क्या किया था, इसका तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। टोटल जो है ये 3 इंस्ट्रक्शंस का। अब हम क्या करते हैं, ये वाली थोड़ी सी मिटा देते हैं ताकि ये वो हो जाएगा। ठीक है, टी स्टेट्स रहने देते हैं, ये सिर्फ ओके फाइन। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, ये 3 इंस्ट्रक्शंस का एक लूप मैंने बनाया था पहले। ठीक है, ये 3 इंस्ट्रक्शंस हमने एग्जीक्यूट कर रखा है। उसको एग्जीक्यूशन करने में हमें कितनी टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट हुई थी, हमने कैलकुलेट कर रखा था पिछली बार, कितना, 3574 3574। ठीक है, अगर इसको हम कंसीडर करते हैं तो, नहीं तो एक बार और हम दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, हमने वहां पे क्या किया था, लूप निकाल लिया था। एक तरीका है, लूप निकाल लोगे उसके बाद क्या करोगे, 70 40 एंड 70 ऐड करके बाद में ऐड करना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है, डायरेक्ट हम 255 टाइम्स के लिए भी निकालें तो क्या आएगा अंतर, अगर हम 255 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, जो 10 स्टेट्स एंड 70 स्टेट्स का डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक ही लूप में तो 70 की जगह पर हमने 10 की लिखना है। बात समझ में आई, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे यहां देखो, जैसे यहां देख लो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। यहां पे हमने कितना कैलकुलेट किया था, 254 टाइम्स के लिए। ठीक है, अगर 255 टाइम्स हम करेंगे, क्योंकि C की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 255 टाइम्स आता है, तो 255 टाइम्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 256 में कितना होगा, ये 70 हो गया, ये 40 हो गया, और ये 10T हो गया, और ये 70 हो गया। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, हाउ मच टाइम, 70, डन, प्लस अब लूप करेगा, तो लूप करने के लिए क्या करेगा, 255 टाइम्स कर देंगे, तो 255 इंटू हाउ मच टाइम, 40 प्लस 10T, दैट इज 14T। ठीक है, 14T।
अब देखो इसमें हमने इंक्लूड कर दिया जो लास्ट वाला जो लूप चला, जो लूप नहीं चलना था वो जो बाहर आना था वो भी कंक्लूड कर दिया। तो वो कंक्लूड ना हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 7, देखो अंतर कितना है, ये जो टेबल 10 टी स्टेट्स लग रहा है वो 70 स्टेट लगेगा, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 3t माइनस कर सकते हैं। कैलकुलेट करो, देखो आंसर सेम आता है कि नहीं आता है जो पहले हम कैलकुलेट किए हैं। अच्छा, मतलब सर कि आखिरी बार वाला जो होगा वो 10 के जगह 7 होगा, हाँ, इसलिए वो जो बस ओरिजिनल वही, 10 वो माइनस कर लेना है। इसीलिए 3t हम माइनस कर दिए, तो ये टोटल t निकल गया। इसको तुम करोगे कैलकुलेट, यू कैन गेट दिस, कितना आ जाएगा 3574। चेक कर लो कैलकुलेट करके इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी। समझ गया, क्योंकि ये बड़े वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा काम देगा, क्योंकि हम एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बारी बारी से सबको एक बार जोड़ना पड़ेगा, और उसमें कभी कभी होता है क्या कि कोई इंस्ट्रक्शन छूट जाता है। ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने क्या किया, सेम तरीके से तुम यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, तो लूप अगर एग्जीक्यूट करने में हम अब क्या करते हैं, पहले लूप 1 की बात करते हैं। सो आई विल इरेज ऑल द थिंग्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले लूप 1 की बात करते हैं सिर्फ। अगर हम लूप 1 की बात करते हैं तो लूप 1 जो है कितनी बार चलेगा, ठीक है, कितनी बार चलेगा, जितनी सी की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू क्या है, FF। इसको मैंने क्या किया, डेसिमल्स में कन्वर्ट किया। आफ्टर कन्वर्टिंग डेसिमल यू कैन गेट 255 टाइम्स। ठीक है, अगर 255 टाइम्स लूप हम चलाएंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा एट दैट टाइम कितना टी स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी, ओनली 7 टी स्टेट। सो यू हैव टू सबट्रैक्ट 3 टी स्टेट्स। ठीक है, ये दूसरे तरीका से बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो लूप है इसको लूप को चलने में कितना टी स्टेट्स लग रहा है, t प्लस 4t प्लस 10t, एक लूप। ठीक है, तो दोनों क्या होगा, आइदर 70 है, ठीक है, तो 40 हुआ तो 14 टी स्टेट्स। तो एक स्टेट्स को एक मतलब लूप को, लूप 1 में एक लूप एग्जीक्यूट करने में 14 टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास सी की वैल्यू कितना है 255, तो 255 गुने 40, ओके, माइनस जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, माइनस 3t स्टेट्स। 3t माइनस क्यों किया, क्योंकि लास्ट जो इंस्ट्रक्शंस होगा, लास्ट बार जो एग्जीक्यूट करेगा उस पर लूप पे ना जाके उस पर कहाँ आ जाएगा, डिक्रीमेंट b पे आ जाएगा। तो 7t स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जो इसके दोनों के बीच में डिफरेंस था उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर इसको 254 इंटू 14 प्लस 7 कर सकते हैं। 254 इंटू 14 प्लस 7। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 357 टी स्टेट्स, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, लूप 2 की बात करेंगे। टाइम हो गया क्या, यस सर। 2-3 मिनट बच रहा ना, नहीं सर। नो खत्म हो सर। गया। अच्छा बस लूप 2 खाली बस थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब देखो लूप 2 किस पे डिपेंड करेगा, लूप 2 जो है डिपेंड किस पे करेगा, वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो वैल्यू b की वैल्यू कितना है यहाँ पे, MPI b, 10h, तो यहाँ पर 10h है। इस 10h को तुम कन्वर्ट करो क्या करो डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जितना वैल्यू आएगा उतनी बार क्या करेगा, लूप 2 चलेगा। तो लूप 2 जब चलेगा तो जो लूप 1 हमने कैलकुलेट किया था ना, ये तो चलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सेक्शन चलेगा और ये भी सेक्शन चलेगा और ये तो चलेगा। मतलब लूप 1 को इंक्लूड कर लेना है, समझ गया।
क्योंकि जब ये लूप 2 एक बार चलेगा ना तो लूप 1 पता कितनी बार चलेगा? 255 बार। ठीक है, तो हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? तो लूप 1 जो हमारा चल रहा है वो कितना चल रहा है? 3 5 6 7, ये मैंने लिख दिया इसका, इसकी जो टी स्टेट थी। ठीक है, प्लस MBI C, F कितना चलेगा? एक बार चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या चलेगा? डिक्रीमेंट B कितनी बार चलेगा? 4 बार चलेगा। लूप 2 कितनी बार चलेगा? लूप 2 कितनी बार चलेगा? मतलब लूप 2 एग्जीक्यूट करने में 10 टी स्टेट्स लगेगा। ठीक है, अब 10 टी स्टेट्स लगेगा तो इतना को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो तुम्हारा B की वैल्यू होगी। B की वैल्यू कितनी होगी? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन -3t करना नहीं भूलेंगे क्योंकि हमने B को 16 लिखा है। ठीक है, अब देखो इतना टी स्टेट्स का रिक्वायरमेंट होगा तो एग्जीक्यूट कितना हो गया? ये पूरा हो गया। हमारा इंस्ट्रक्शन कौन सा बच गया? MBI B, 10h। तो MBI B, 10h भी तो एक बार एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? 70 अलग से ऐड कर लेंगे, टाइम निकाल लेना। ठीक है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, टाइम निकाल लेना, एग्जीक्यूट कर लेना।